مل کر بواز بلند سلوات پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. امی المکی المدنی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید قول الحق و هو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. مل کر بواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. خالق علم جزل سے دعا ہے کہ بانیان مجلس کی یہ صف عطا بچھایا پروردگارہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ یہ جتنے مومنین مومنات یہ روزے دار اس فرش عطا پہ تشریف فرما ہیں، پروردگارہ ان کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بابا جی کا حکم ہے اور انہی کے توسط سے نوکری کرنے آیا ہوں اور ان سے دعائیں بھی لینی ہیں اور آپ کی بزرگواری بھی دیکھنی ہے. اور انشاءاللہ میری ساری تقریباً آدھی سے زیادہ زندگی امام رضا علیہ السلام کے شہر میں گزری ہے اور آپ سے دعائیں لیتے ہوئے، اور ظاہر ہے آپ تھکے ہوئے ہیں اور روزے کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے کیونکہ روزہ ہوتا ہی علی والوں کے لیے ہے. میں نے جملہ کہہ دیا مگر آپ کو سمجھ نہیں آئی. روزہ قبول ہی آپ کا ہے. دلیل دے دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں بات نہ رہے. کہا کہ مولانا سے بات کہہ کر چلے گئے. دیکھیے جب ہر ایک گروہ، اب ایک فرقہ جب جنت میں جانے لگے گا اور وہ ساری اپنی عبادات ساتھ لے کر جائے گا، وہ مولوی صاحب کے بہکاوے میں رہا، مولوی صاحب نے کہا کہ یہ عبادت کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، نماز پڑھ لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، روزہ رکھ لو تو جنت میں چلے جاؤ گے. مگر جب جانو لگو گے، جب تم جانے لگو گے تو وہاں پر فرشتے آواز دیں گے، کہیں گے واقفوہم انہم مسئولون. ان کو روکو اور ان سے سوال کرو. کیا سوال؟ یسألون عن الاقرار بولایت علی ابن ابی طالب. ان سے پوچھو کہ انہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے یا نہیں کیا. دیکھیے سحر قریب ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ سب نے لنگر جو ہے وہ تناول فرمانا ہے. نعرہ ایسا لگائیے کہ نجف تک آواز جانی چاہیے. مل کر ایک مرتبہ سارے نعرہ لگوائیے. نعرہ حیدری. قبلہ اب وہ ایک آپ کے شاگرد معظم ہندو کے شعر سنا کر گئے. آج کل ہمارا واسطہ ہندوؤں سے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں بھی ایک ہندو کی بات سنا دیتا ہوں. میں نے بالکل لمبی چوڑی تو گفتگو کرنی نہیں ہے. آپ لوگوں کا ماحول دیکھ کے نا چاچا جی، آپ میرے خیال میں قبلہ مداح حسن شاہ صاحب کی مجلس میں بھی موجود تھے، سامنے آپ کی زیارت ہوئی. تو میں بھی ایک ہندو کا واقعہ سناتا ہوں کیونکہ جو بانی مجلس ہے نا ان کو دیکھ کر مجھے یہ واقعہ یاد آ رہا ہے. جی ہاں بابا جی جڑے بانی پیر صحیح اور ساڑی ویری قدر نہ تواڈی ویری آسے بابا جی. جی ہاں کیونکہ جڑے جی ہاں بانی جڑے ہیں نا، میں اپنی دوسری کیونکہ میرے جو ننیال ہے نا وہ ہے مظفر گڑھ کے، تو پھر آپ کو دیکھ کر وہ بولی بھی یاد آ جاتی ہے. ویسے شاگرد میں قبلہ آغا نسیم عباس رضوی اللہ مقامہ کا ہوں. جی تو بات یہ ہے کیونکہ جو بانی مجلس ہیں بہت مخلص شخص ہیں، اور واللہ میں پیچھے ممبر پہ دیکھ رہا تھا کس محبت سے ذاکرین کو لے کے آنا ہے، ایک ایک سے محبت کرنا. تو مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، میں وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں. داد آج نہیں لینی، بس آپ دے دیں گے دعائیں. میں مجلس آپ کو ایک نقطے پہ آپ سے داد لے سکتا ہوں، لیکن وہ واقعہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک آپ کو یاد رہے گا. ہندوستان میں ایک ہندو تھا، توجہ، شہر ہے گوالیار. اور جب بھی وہ محرم آتا تھا نا، حضور بزرگوں سے دعا لیتے ہوئے، جب بھی محرم آتا تھا، ہون توجہ تو سا میڈو رکھسو، ٹھیک ہے نا. دیکھو میں سرائکیے چاہے میں گدار ڈیسو میں تاکہ عبادت ہی نال تھیندی رہے. جب بھی محرم آتا تھا تو وہ کوئی مطلب 1 لاکھ 2 لاکھ جس طریقے سے اس کی مطلب استعداد ہوتی تھی، وہ خود بہت بڑا سیٹ تھا.
वो पैसे देता था, पैसे अपने मुंशी से लेके और मौला की राह में दे देता था। मुंशी उससे पूछता था कि मालिक ये बताइए कि ये पैसे जो है किसके खाते में लिखने हैं। तवज्जो, मुंशी का किबला यही काम होता है ना। अब हिंदू का जवाब सुनिए। अब हिंदू उससे कहता था कि ये पैसे लिख लो, ये पैसे लिख लो, ये लिख लो सेठ हुसैन के खाते में। तवज्जो, ये सेठ हुसैन के खाते में पैसे लिख लो। और खुदा की कसम वक्त गुजरता गया, हिंदू पे एक ऐसा दौर आया, ठीक है ना। किबला रुक के यहाँ पे बात करता हूँ। हिंदुओं की वाकयात ये हम मुसलमानों को इसलिए सुनाते हैं कि हिंदू भी हुसैन को मान गया, नहीं माना तो बदशक्ल मुसलमान ने नहीं माना। तवज्जो, ऐसा है ना। हिंदू पे हजूर एक ऐसा वक्त आया कि हिंदू की सारी दौलत खत्म हो गई, उसका सारे का सारा माल खत्म हो गया, ठीक है ना। मगर उसका अकीदा उनका अकीदा इवें जिवें बाबा साजद शाह है, ठीक है ना। इवें आए जले मुंशी के पास जब वो आया, चाचा जी बुजुर्गों आपसे दुआ लेते हुए, जब वो मुंशी के पास आया उसने कहा कि रजिस्टर निकालो और खाते खोलो, हो सकता है हमने किसी से कोई लेना देना हो। अब मुंशी ने जो है रजिस्टर खोला, रजिस्टर खोल कर देखता है, कहता है यहाँ तो कोई नहीं लेता। कहता है हाँ, तवज्जो, कहता है हाँ हमारे पैसे बनते हैं। कहा किससे हमने पैसे लेने हैं? कहा हमारा सेठ हुसैन की तरफ तो 40-50 लाख बनता है। तवज्जो, तवज्जो। और सेठ उसका कहता है, और उसका वो हिंदू मालिक कहता खबरदार, सेठ हुसैन का नाम लिया, अब नाम भी ना लेना, हमने वो पैसे जो है सेठ हुसैन से वापस नहीं लेने। एक नारा मराओ ना, मैं कुछ तसल्ली तो हो गए। बात की समझ आ रही है ना। हमने वो पैसे जो हैं वो सेठ हुसैन से वापस नहीं लेने। हिंदू परेशान हाल घर चला गया और उसका जो मुंशी था वो गोदाम में सो रहा था। तवज्जो, तकरीबन रात का यही आलम होगा कि मुंशी के जिस कमरे में सो रहा था दरवाजे पे दक्कल बाब हुआ। अब मुंशी ने जो है दरवाजा खोला। तवज्जो, मुंशी ने दरवाजा खोला, मुंशी ने कहा, मुंशी ने देखा कि एक नौरानी चेहरा आया है, उसके हाथ में 2 पैसों की बोरियां हैं। मुंशी से कहता है कि जरा खाता तो निकाल, जरा अपना रजिस्टर तो निकाल, और उसमें से सेठ हुसैन का खाता तो निकाल। और उसने रजिस्टर निकाला, उसने कहा कि कितने पैसे बनते हैं सेठ हुसैन के? उसने कहा कि सेठ हुसैन के बनते हैं 40 लाख। तो मेरे मौला ने कहा कि ये ले 80 लाख, और अपने मालिक से कहना कि रात को सेठ हुसैन आया था और 80 लाख देकर गया था और कहने लगा कि मेरे खाते को कभी मत बंद करना। यानी ये है हुसैन का खाता जिसने खोल दिया है ना, फिर रिस्क की कमी नहीं आएगी। और इसीलिए शायर ने कहा, हिंदू शायर है, उसने कहा कि जन्नत में यही कह के चला जाऊंगा माथुर। तवज्जो, जन्नत में यही कह के चला जाऊंगा माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं। तवज्जो है मेरी तरफ। अब मैं आपसे नारा लगवाऊंगा, मैंने देख लिया कि नारे के मूड में आप नहीं है, लेकिन ऐसा नारा लगवाऊंगा कि आपको लुत्फ आ जाएगा, ठीक है ना किबला। और बिल्कुल मैं आपको इससे ज्यादा नहीं थकाऊंगा किबला, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं अपनी नौकरी को खत्म करने वाला हूं, ठीक है। अब आपने जब आले मोहम्मद से कोई भी खाता खोला है, अगर आप रोजा रखते हैं ना तो अल्लाह की रजा के लिए, आले मोहम्मद की रजा के लिए रोजा रखते हैं तो रोजा वही कबूल है। तवज्जो, तवज्जो। और जिस जिसने इनके दरवाजे पे, जो इनके दरवाजे पे झुक गया, जो इनके दरवाजे पे मांगने आ गया, जो दरवाजे पे रुक गया, फिर खुदा की कसम अगर दरवाजे पे झाड़ू भी देता हो तो ये उसको इतना बुलंद बना देते हैं और ये कह देते हैं कि आज सलमान और मिन्ना अहलल बैत, सलमान तुम हम अहले बैत में से हो। और यही वजह है कि हमने दीन जो है आले मोहम्मद से लिया। और अब तवज्जो रखिएगा, यही वजह है कि इस दीन का नाम अल्लाह ने इस्लाम रखा। तवज्जो, आले मोहम्मद की वजह से यही वजह है कि इस दीन का नाम अल्लाह ने इस्लाम रखा, इसके बनाने वाले का नाम रहमान रखा, और इसके पहुंचाने वाले का नाम मोहम्मद से इंसान रखा, और इसकी किताब का नाम कुरान रखा, इसकी किताब का नाम कुरान रखा, और इसके वसीले का नाम कुल्ले ईमान रखा। तवज्जो, इसके वसीले का नाम
नाम कुल्ला ईमान रखा, इन सब के निगरान का नाम इमरान रखा, और इसके आखिरी वारिस का नाम इमाम ज़मान रखा। नहीं नारा तो मराए ने, ये तो जुल्म है, ये बुजुर्गा नहीं दुआ है। और बात कहते खड़वा वजह मिलकर देखे बुजुर्ग हैं वो हमारे, खुदा की कसम। मैं आपको एक रिवायत सुनाए देता हूँ, ठीक है ना। चाचा जी मैं बिल्कुल मुकदा पिया, तेरे कल दुआ घिंदा बिल्कुल मुकदा पिया कि जब आप बहिश्त के दरवाजे पे जाएंगे ना तो वहां पर एक जंग लगी हुई होगी, वहां पर एक जंग लगी हुई होगी जिसको असा टल्ली याद है अपनी जबान ते। जन्नत दा दरवाजा ऊ वेले कुर्सी जला तुसाक सो नारा हैदरी या अली मदद आख के जिवे मुक्सी तो ऊ टाइम तोड़े कर जन्नत दा दरवाजा खोल वैसे। जन्नत में जाना है, मसाइब नहीं पढ़ूंगा, वो किबला पढ़ेंगे, बस मेरी नौकरी खत्म हो गई, आखिरी जुमला और दुआ। जन्नत में जाना है, मेरा दिल चाह रहा है किबला मैंने जो इमाम की नौकरी किया है एक इमाम रजा का जुमला सुना दूं। हे मूड, अगर मूड है तो उच्ची जे सलवार सुनाओ। पीर साजिद शाह के ना वञे हथे न पाया वञे, डारी बड़ लगा जी हाँ। अच्छा साईं ठीक है ना, अच्छा बाबा जी साड़ियों वाग डोरे तुम्हारे हथे ना, ठीक है ना। अब सुनिएगा, बस नौकरी यहीं पे समेट रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इमाम की बात, इमाम का जिक्र हुआ है, नमक खाया सारी जिंदगी इमाम का, 19 साल गुजारे हैं, तो एक वाकया हो जाना चाहिए, ठीक है ना। मामून मलऊन का दरबार था। मामून मलऊन ने एक दिन दरबार के अंदर एक जादूगर को बुलवाया, तवज्जो, और जादूगर से कहा कि आज जरा जो है इमाम मासूम के ऊपर तुमने जादू करना है, तवज्जो, ठीक है ना जी। मत लुत्फ आया, बस अब दुआ दीजिएगा। तुमने आज इमाम मासूम के ऊपर जादू करना है, और उसने दरबारियों से कह दिया कि जब इमाम रजा आएंगे ना तो तुमने उनका इस्तकबाल नहीं करना, तवज्जो। ये कहकर मामून ने किबला कासिद को भेजा और कहा कि इमाम रजा को बुला के ले आओ, तवज्जो चाहता हूँ। अब कासिद चलता जा रहा है और रास्ते में ये सोचता जा रहा है कि ये मामून जो है ये कितना मलऊन है, ये एक इमाम मासूम पे जादू करवाना चाहता है, इसको शर्म नहीं आती, तवज्जो, इसको शर्म नहीं आती। इमाम के पास पहुंचा, इमाम से कहता है कि मौला आपको मामून ने जो है वो याद किया। अच्छा जी ठीक है, अल्लाह खैर करे से, ठीक है, थोड़ी तवज्जो मैं डरावे, ठीक है ना। बाबा जी आ गए, बाबा जी आए, आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना रहा हूँ, इमाम की अज़मत का, और इंशाल्लाह मैं इमाम का मोहर याफ्ता खुदाम भी हूँ। अगर कभी आप तशरीफ लाएंगे तो इंशाल्लाह आपको लंगर इमाम का खिलाएंगे, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह बैठ जाइए। एक तो बाबा जी का मोबाइल पे फोन ही खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब तवज्जो मेरी तरफ, बानी मजलिस तशरीफ ला चुके हैं, बाबा जी आपसे दुआ लेते हुए, ठीक है ना। तो इमाम से कहा, आप तवज्जो मेरी तरफ रहे। अब इमाम जो है चलने के लिए आमादा हुए। चाचा जी तोड़े करने दुआ गिरनी, तुसे पीर ने देखने लग गए, ठीक है ना। बुजुर्गा करने तो दुआ गिरनी है, ठीक है, जिन्ना मेरे बुजुर्गा को सुने है, ठीक है। अब इमाम जो है आमादा हुए, इमाम चलने लगे। एक मर्तबा इमाम ने जो है तवल्ला का मुसल्ला बगल में लिया और तबर्रा का सा हाथ में लिया, तवज्जो। अब इमाम ने जब खरामा खरामा चलना शुरू किया तो हवाएं ने रुक रुक कर चलना शुरू किया, अरवाही अंबिया सिमट कर करीब आने लगे। ईसा देख रहे हैं, मूसा मुशाहिदा कर रहे हैं। और एक मर्तबा जब इमाम चलने लगे, खुदा की कसम पूरी कायनात हमातन गोश हो गई थी, और कायनात देख रही थी कि ये अल्लाह की हुज्जत चल रही है, अल्लाह का महबूब जा रहा है, अल्लाह का इमाम जा रहा है। और वो जो बंदे बैठे थे कि इमाम का इस्तकबाल नहीं करना, और जैसे ही मेरे इमाम के कदम जो है दरबार में आए, हवाओं के दोष पर पर्दे हटने लग गए, हवाओं के दोष पर पर्दे हटने लग गए, और ये ऐसे उठे कि जिस तरीके से फरिश्तों ने बालों से खींच कर उठाया हो। मेरे मौला जाकर मिंबर पे बैठ गए, कहा मामूम तुमने मुझे क्यों बुलाया? कहा मौला बस वैसे कुछ मसाइल पूछने थे इसलिए आपको बुलाया। और ये कहकर उसने जादूगर की तरफ इशारा किया, जादूगर से कहकर अपना जादू शुरू करो। जादूगर ने जो है अपना जादू करना शुरू किया। अब सारों की तवज्जो मेरी तरफ रहे, जो इमाम रजा का लंगर खा कर आए हैं और सैयद होने के नाते दुआ करता हूँ इसी साल इमाम की ज़ियारत नसीब होगी। जब जादूगर ने जादू करना शुरू किया और इमाम ने कहा ये जो हरकत कर रहा है अपनी हरकत से बाज आ जाए, तवज्जो,
मगर जादूगर नहीं रुका। फिर इमाम ने कहा, जब उसने फिर जादू करना शुरू किया, इमाम ने दूसरी मर्तबा कहा कि ये जो हरकत कर रहा है अपनी हरकत से बाज आ जाए, मगर जादूगर नहीं रुका। जब जादूगर ने किबला तीसरी मर्तबा जादू करना शुरू किया तो फिर इमाम ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि निगाह इमामत जो थी वो आसमान पर उठी, आसमान से नीचे उस महल पर आई, महल के बाद उस दीवार पर आई, दीवार के बाद उस कालीन पर आई, कालीन के बाद उस शेर पर आई। जैसे निगाह इमामत शेर पर आई तो शेर के अंदर गोश्त आने लगा, पोस्त आने लगी, खून आने लगा, जान आने लगी। जंप लगाकर मौला के कदमों में आकर कहता मौला क्या करना है? मौला ने कहा कि इस जादूगर को बताओ कि हम कौन हैं। एक लम्हे के अंदर शेर जो है जादूगर को हड़प कर गया और मेरे मौला ने वहां पर अजीब जुमला कहा। मेरे मौला ने कहा, देख मामून, हम कुछ चाहते नहीं है, हम वही चाहते हैं जो हमारा रब चाहता है, और हमारा रब चाहता वही है जो हम चाहते हैं। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह के दिया, सुभान अल्लाह।